وعلى أمة اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من حسين. صدق الله اللهم صل على محمد وآل محمد. کچھ باتیں کچھ ہونے سے پہلے آئیے تو شعر کربلا والے امام کے حوالے سے آپ تک پہنچاتے ہیں. ارشاد دائی مالک بن نیاز اس شہید کے ذریعے سے جس کے ذرے جس کے قطرے کے ذریعے سے اسلام زندہ ہے اور اسلام تا قیامت زندہ رہے گا. انشاءاللہ. اس کی گواہی کوئی ہم نہیں بلکہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے جس کا کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واہ 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 وہ واہ. اگر اس کا اگر عقیدہ یہ ہے تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردار مت کہو، تم کو ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے. جب عام انسان اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے اسے مردہ نہ کہو تو شہید اعظم کا کیا حال ہوگا. واہ واہ واہ. عام شہید کا یہ مرتبہ بتایا گیا ہے پھر شہیدوں کے آدم کا امام کا. اچھل کے بولے ایک بات یا حسین یا حسین. ایک بار بولے یا حسین یا حسین. یا حسین. یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، واہ 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 واہ. حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے. جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ہر زمانہ میرے حسین حسین کا ہے. واہ واہ واہ. کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. محرم الحرام کی ایام کو سمجھنا اور اس کی زندگی کے حالات کو دیکھنا کسی مقرر کے ذریعے سے الفاظ نہیں بولے جا سکتے، کسی مصنف کی تحریر کے ذریعے سے تحریر نہیں کیے جا سکتے. اس لیے کہ جو سامنے دکھتا ہے صرف وہ بیان کر پاؤ گے، لیکن جو حقیقت گزرتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بلکہ ہماری سمجھ اور ہمارے ذہن، ہماری فکر، ہماری سوچ کے اعتبار سے جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے اسی کو ہم سنتے ہیں، اسی کے مطابق ہم سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق جانتے ہیں. ایک بار ہلکا جھلک ہم آپ کو کربلا کا بس ایک پھول ہے جس کے بارے میں ہم جس کا نام کچھ اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا سرکار امام علی اصغر ہے. ان کی زندگی کے بس آخری ہلکا نقطہ ہم آپ تک بات رکھتے ہیں اور اپنی بات کو وہیں پر ختم کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا، اول سے لے کر آخر تک. تیری نسل پاک میں ہے
बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर वाह, वाह, का, वाह, तेरा वाह, सब सुभान अल्लाह, घराना सुभान नूर अल्लाह। का। अब नूर के मुताबिक बात चल गई है, मचल के बोले एक बार या हुसैन, या एक बार हुसैन। मचल के बोल दें या हुसैन। या दो सहाबी हुसैन। आए, हदीस पाक बयान की जाती है, दो सहाबी आए, नबी की बारगाह में अर्ज हुए, एक सहाबी दूसरे सहाबी बैठे रहे, रात ज्यादा जब गुजरी तो दोनों सहाबी अपने घर जाने का इरादा किए, अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कोई तो सामान होगा। सहाबी अर्ज करते मेरे पास लाठी है, इसके अलावा कोई दूसरा सामान नहीं है। मेरे आका ने उस लाठी को पकड़ा, वो लाठी मिसले राड के बन गई और उस रोशनी के जरिए से वो अपने घर तक पहुंच गए। यहाँ तक बात मुकम्मल ना हुई, दूसरे सहाबी का घर दूसरी तरफ था। वो कहने लगे कि ऐ सहाबी, तुम्हारा घर करीब आ चुका है, अब मैं कैसे घर जाऊं? कहने लगे जिस हाथ पर जब जिस शय पर नबी का हाथ पड़ जाया करता है वो ता कयामत तक शादो आबाद हो जाया करता है। वाह, वाह, उस वाह। लाठी को उस सहाबी ने, दूसरे सहाबी ने उस लाठी के अंदर मस किया, जिस लाठी को मस किया उस लाठी के अंदर मिसले राड के अंदर रोशनी आ गई है। वाह। हम इतना कहना चाहते हैं, जिस लाठी को नबी पकड़ ले उसके अंदर रोशनी आ वाह, जाए, वाह, वाह, जिस वाह, वाह, लाठी को सुभान नबी पकड़े उसके अंदर रोशनी आ जाए, वो लाठी जब दूसरे लाठी से मिल जाए तो उसके अंदर रोशनी आ जाए। तो बिया तमसील इसी बात को अपने अंदर रखो कि जो हुसैन से मोहब्बत करे, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह नबी वाह वाह फरमाते हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अभी नुक्ता आपको देंगे, मचल के बोले सुभान अल्लाह। बस इसी की तहरीर यूं है कि फरमाते हैं कि नबी से टुकड़ा निकला हुसैन है, और हुसैन से जो जो मोहब्बत करे उस तक नहीं, जो उनसे मोहब्बत करे वाह। अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाता वाह, है। आपकी दलील के मुताबिक बस अपनी बात को मजबूती से यही कहते हैं, नबी फरमाते हैं वो माता हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना व बशरुल फिल जन्ना। नबी फरमाते हैं जो इंसान दिल के अंदर हसन हुसैन की मोहब्बत, आले मोहब्बत की मोहब्बत, मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रखता हुआ दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए, रहमत के फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बनाता फरमाता है। वाह वाह वाह। अब रहमत के फरिश्ते आते हैं इस कब्र को देखने के लिए, इस कब्र के अंदर आखिर है क्या, इस इंसान के अंदर है क्या, तो आपका ज़मीर गवाही देगा, आपका ईमान बोलेगा। वो इंसान काबिल कबूल न था, उस इंसान की जिंदगी काबिल कबूल न थी, बल्कि काबिल कबूल ये हुआ जो दिल के अंदर उसने हुसैन व आले हुसैन की मोहब्बत पैदा करवाई। बस यही मैं, बस आखिर में तमाम के बयान करवाते हैं कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। आखिर ये बताओ ये कब तक है, कब तक है? ये तो सिलसिला समझ में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नूरे नजर, जिसे हम कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन भी कह लो, मोमिनों की माँ, सरदारों की माँ, मोमिनों की माँ, वलियों की माँ, तमाम सबकी माँ, जिसे हम कहते हैं फातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा उनको कहते सल्ली हैं। अला मोहम्मद व ये तो बात समझ में आई कि नबी की बेटी है फातिमा, और फातिमा के नूरे नजर हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत मोहसिन और माँ ज़ैनब। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि हुसैन से नबी है। लेकिन आओ हल्का तारीख का मुताला करें और 2 मिनट के अंदर बस बात को समझे। मचल के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी। या अली। बस करीब करते जहन को चले जाओ और सवरते जाओ। मौला हुसैन 4 साल के हैं, अभी नबी से हैं, जहाँ तक कि देखा गया बड़े हुए अभी नबी से हैं, चला गया करीब होते जाओ और करीब होते जाओ। हजरत अली अकबर पैदा हुए, अभी नबी ही से है। अली असगर पैदा हुए, नबी ही से है। अली यूसुफ पैदा हुए, नबी ही से है। करबला में गए, अभी नबी ही से है। लेकिन याद रखो, 1 मुहर्रम गुजरा, 2 मुहर्रम गुजरा, 3 मुहर्रम गुजरा, 4 मुहर्रम गुजरा, यौम आशूरा का जब दिन आया, शिमरे लईन बदबख्त मेरे मौला पर सीने पर बैठा, जैसे ही वार किया। अब हदीस पाक से ये अल्फाज निकलते हैं, अभी तक मदीने से लेकर शाम की वादी से पहले करबला तक हुसैन मुझसे थे। वाह 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 वाह, लेकिन शिमरे लईन वाह ने जब वाह वार वाह किया वाह है, वाह। तो फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है, लेकिन मेरे हुसैन का जब सर
वतन से जुदा होता है। अब हर सहाबी, हर मोमिन कहता है कि हुसैन से नबी है। वाह, बताइए वाह, चला वाह, वाह, कि वाह। इस्लाम हुसैन है, सदाकत हुसैन है, कुरान हुसैन है, जिंदाबाद, अदालत वाह, हुसैन वाह, वाह, है, वाह, वाह, सखावत वाह। हुसैन है, क्या सुजात कहने। हुसैन है, सब कुछ हुसैन है। हुसैन ना होता तो शायद कायनात वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह लब्बैक वाह या हुसैन, लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन मरहले वाह, आप वाह, देखते वाह, चले आए हैं और जिंदगी देखते रहेंगे। ये हमें बतलाओ, आपने कुरान पढ़ा है, कुरान के अंदर एक सूरत है जिसको कहते हैं इन्ना तोइना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। ये अबतर जो लफ्ज है बहुत कठिन है, इसके अंदर न जाने पता नहीं कितने भवन में आए और वाह, चले गए, वाह, वाह, समझ वाह, न पाए। वाह, वाह, नबी वाह। फरमाते हैं सुन लो मेरे मानने वालों, सुन लो मेरे कलमा पढ़ने वालों, अगर दिल के अंदर तुमने इस्लाम की बू, ईमान की बू अगर तुमने बना के रखी है तो सुन लो और कायदे गौर से सुन लो। नबी फरमाते हैं एक बार मचल के बोलो या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। बस यहीं से करिए यहीं से या हुसैन। बस जिंदगी के अमाल को मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हम आपको बतला दे, नबी फरमाते हैं हजरत आदम उनकी नस्ल उनके लड़कों से, हजरत नूह उनकी नस्ल उनके लड़कों से, हजरत इब्राहिम उनकी नस्ल उनके लड़कों से, हजरत इस्माइल उनकी नस्ल उनके लड़कों से, हजरत दाऊद उनकी नस्ल उनके लड़कों से, हजरत मूसा उनकी नस्ल उनके लड़कों से, हजरत ईसा उनकी नस्ल उनके लड़कों से। नबी फरमाते हैं जितने भी अंबिया आए हैं सबकी नस्ल चलती है उनके लड़कों से। वाह हजरत आदम हो, शीश हो, जकरिया हो, लूत हो, याकूब हो, इब्राहिम हो, ईसा हो, मूसा हो, वाह, वाह, यूसुफ वाह, हो, वाह। रमल हो, जितने भी अंबिया हैं सबकी नस्ल चलती है उनके लड़कों से। लेकिन ये एजाज अल्लाह ने बस मोहम्मद वाले मोहम्मद को रखा है वाह। कि मेरे नबी की नस्ल चलेगी, हजरत इमाम हसन हुसैन से चलेगी। वाह 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 अब मदीने के अंदर रहने वाले या उसके बाद वाले उनका चेहरा बंद हुआ और बस आखिरी लफ्ज बस यहीं पर हम आपको देते हैं और अपनी बात को ख़त्म करते हैं। शोदा की ज़िंदगी बयान करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, शोदा की एक ज़िंदगी को बयान करना कोई खेल नहीं है, बल्कि इशारा ये समझो कि मौला अब्बास जिन्हें हम कब्र बनी हासिम कहते हैं वाह। उनको कोई हल्के में समझता है? अरे हल्के में मत लो, बल्कि बयान किया गया जब खेमे नस्ब किए गए तो मुहर्रम को यजीदियों ने 4000 कितना हजार 4000 काफिला आया और कहने लगा हुसैन से कह दो कि ये अपने खेमे पीछे करे। वाह। मौला अब्बास बाहर खड़े थे, तलवार को निकाले, एक लकीर खींचे और फरमाने लगे जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो ये लकीर पार करके दिखा दे। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो ये लकीर पार करके दिखा दे। हजरत इमाम हुसैन खेमे में थे, फरमाने लगे मौला अब्बास के अंदर अब ताकत वो यौम है बल्कि हैदर करार वाली ताकत आ चुकी है, वो बाजू के अंदर कुछ और नहीं, माँ फातिमा ज़हरा के किरदार दिख रहे हैं। ऐ बीबी ज़ैनब उनसे कह दो कि जरा गौर करें और खेमे की तरफ चले आए। हम यहाँ पर उनको अपने हैदरी करार को दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु जो अल्लाह चाहता है वही कहीं करने के लिए आए हैं, जो करबला के मैदान में है। वरना ये हल्की फुल्की बात नहीं, हम आपके इम्तिहान के मुताबिक आपसे पूछते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अफजल है या इमाम पाक अफजल है? वाह। आपका ईमान कहेगा बाप अफजल होता है, बेटा अफजल नहीं होता है। ख्वाजा गरीब नवाज वो है, एक इशारा कर दे तो सारे का सारा अना सागर एक इशारे से करीब कर ले और इशारा करे तो सारे अना सागर को फिर उसी में कर दे। अमा बेटे के अंदर ये ताकत है तो बाप के अंदर कितनी ताकत होगी। ये तो करबला के मैदान में सिर्फ दिखानी थी कि इन्ना तो इन्ना कल कौसर दिखानी थी। और एक आयत बचल के बोलो सुभान अल्लाह, एक बार बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। या हुसैन आपने जिक्र सुना है और कुछ नहीं, हाजी हज करने जाते हैं, आपने पानी देखा है जमजम, क्या देखा है? जमजम। जमजम का माना होता है ठहर ठहर, यानी रुक रुक जा। वो पानी रुका कैसे, ठहरा कैसे? तो नुक्ता बस यूँ है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपने के आलम में है, पालने के आलम में है, वो लेटे हुए हैं, वो लेटे हुए, नुक्ता समझो, वो लेटे हुए हैं। हजरत उम्मे उनकी माँ ने उनको ज़मीन पर लिटारा और हजरत इस्माइल ने एड़ियों से जब रगड़ा तो अल्लाह ने उनके एड़ियों के जरिए से पानी को
उबाल में दिया, पानी को उबाल में दिया। उनकी माँ कहने लगी ज़मज़म ठहर जा, लेकिन याद रखो करबला के इमाम ने अली अस्गर को करबला के मैदान में निकाला नहीं, बल्कि उनको झूले में रखा। क्यों झूले में रखा? झूले में यूं रखा, जब हजरत इस्माइल के एड़ियों की रगड़ने से ज़मज़म आ सकता है, तो मेरा अली अस्गर अगर एक बार इशारा कर देगा सारी कायनात के अंदर पानी पानी। इसीलिए मौला अस्गर को झूले के ऊपर रखा। आखिरी जुमला यूं हुआ, फरमाते हैं कि मौला हुसैन एक बार कम से कम यजीदियों से कह दो कि उनकी दुश्मनी मुझसे है, उनकी दुश्मनी मेरे खून से है, उनकी वफाई या गद्दारी मेरे खून से है। 3 दिन हो गए, भूख और प्यास क्या देखा गया है? 3 दिन के हैं अमामिया, 3 दिन भूख और प्यास कुछ नहीं होती है। किस नहीं होती है? आप तुमको नाम चल के बोले या हुसैन, एक नाम देते हैं, उनका नाम है साबरे कलियरी। उनकी हल्की जिंदगी देख लो, ये हुसैन की औलाद में से है, हुसैन की औलाद में से है। अमा जो 40-40 साल बगैर खाना खाए रह सकता है, क्या उसके असली और उसके नस्ल वाले असर नहीं रह सकते हैं? ये तो फर्क दिखाना था। मौला हुसैन को जैसे हिलाया गया, शिमले से कहा गया कि ए जालिम, मौला हुसैन ने एक खुतबा पढ़ा, उसके 2 अल्फाज बचल के बोले या हुसैन। मौला हुसैन ने फरमाया कि तुम मेरे खून के प्यासे हो, क्या तुम पहचानते नहीं कि हम कौन हैं? क्या तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं? क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरे वालिद का नाम शेर खुदा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरे बड़े भाई का नाम हजरत इमाम हसन है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरे नाना का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या आपको मालूम नहीं? उस तरफ से एक अल्फाज बोला कि हमें रिश्ते मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन सिर्फ बादशाह के कहने पर समझो या माल के कहने पर समझो। हम आपसे बात करने आए हैं। हुसैन सुनो, पानी तो छोड़ो, एक बूंद भी नहर फरात का हम आप तक नहीं देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, याद रखो ये दुनिया फानी है, तुम भी फानी हो, तुम्हारा वक्त फानी है। इस वजह से हुसैन थे, हुसैन हैं, हुसैन रहेंगे। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। पता ये चला, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से लड़ेगा, झगड़ेगा, वो सिर्फ रहेगा, होगा नहीं, बल्कि नबी की आल है और ता क़यामत तक इसी धरती पर रहेगी। वाले कौन का जिक्र करने वाले शिमक ने एक ऐसा तीर मारा जो आखिर अल्फाज यूं गुजरे कि हजरत मौला अली अस्गर रज़ियल्लाहु ताला उनके बाजू में लगा और उनके बाजू से लगकर आपके हुक्म में लगा। आपने एक बात मारी और अपने वालिद गिरामी को और एक बार कहा, बस अपनी जुबान से बस अपने वालिद को देखा और बस यूँ पुकार कर कहा कि ऐ मेरे वालिद गिरामी, पाने की कोई बात नहीं, खाने की कोई बात नहीं, इस सामान की कोई बात नहीं। मौला अस्गर कहने लगे कि बस यूँ दिखाना था कि ए मदीने वाले आके तुम्हारी उम्मत में ऐसे ऐसे होंगे जो मोहम्मद पर ऐसा जुल्म करेंगे, तुम्हारे किरदार वाले ऐसे होंगे कि मौला अब्बास को ऐसे परेशान करेंगे, तुम्हारे औलाद में ऐसे होंगे कि हजरत कासिम के बाजू को काटेंगे, तुम्हारे ऐसे होंगे, अली अस्गर को ऐसा करेंगे, तुम्हारे में ऐसे होंगे, अली अकबर को ऐसा करेंगे, तुम्हारे में ऐसे होंगे, हजरत सकीला के साथ ऐसा करेंगे। ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे मुसलमान हैं जो कुरान भी पढ़ते हैं, इस्लाम भी सिखाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और इस्लाम को बताते हैं। मौला हुसैन ने अली अस्गर की खून को लेकर ऐलान कर दिया, सुन लो और गौर से सुन लो, कुरान पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है कि नबी से मोहब्बत करे, नबी की हर कौल से मोहब्बत करे। बस यही पर अल्फाज है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बस करबला वाले इमाम